Hello friends, how are you all? I hope everyone is doing good and your families are safe and healthy. So from today onwards, we are going to start FR for old course students especially. In this video series, we will cover the AS and Ind AS practical questions which are specified by ICI in the practice manual. Today, we will cover chapter number 6, that is accounting and reporting of financial instruments. So let us start with question number 1. A company has issued 9% mandatorily redeemable preference shares with mandatory fixed dividends. Evaluate whether such preference shares are an equity instrument or a financial liability to the issuer entity. तो इस केस में क्या हुआ है कि 9% मैंडेटरीली रिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर्स और उनका क्या है फिक्स्ड डिविडेंड भी है। तो यानी कि दोनों तरफ से जब मैंडेटरीली वर्ड आ जाता है ना तो वो एक लाइबिलिटी तरह से वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। तो हम ये इक्विटी तो नहीं आएगा, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा। इसका आंसर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्या है वो एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, मैंडेटरी है तो वो लाइबिलिटी आता है। In determining whether a mandatorily redeemable preference share is a financial liability or an equity instrument, it is necessary to examine the particular contractual rights attaching to the instrument's principal and return components. तो यहाँ पे principal क्या होगा, जो preference shares का capital है वो, और return component में आ गया हमारा dividend, वो भी fixed है. The instrument in question provides for mandatorily periodic fixed payment of dividend and mandatory redemption by the issuer for a fixed amount at a fixed future date. Since there is an contractual obligation to deliver cash for both dividend and repayment of principal to the shareholder that cannot be avoided, the instrument is a financial liability in its entirety. तो पूरी तरह से वो financial liability हुआ, ऐसा division कुछ नहीं है, पूरा entirely वो liability में आया. Coming to question number 2. An entity is about to purchase a portfolio of fixed rate assets that will be financed by fixed rate debentures. Both financial assets and financial liabilities are subject to the same interest rate risk that gives rise to opposite changes in fair value that tend to offset each other. Comment. तो क्या हो रहा है कि एक फाइनेंशियल फिक्स रेट असेट्स हम ले रहे हैं और जो कि फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स के ऊपर फाइनेंस होगा. तो जो फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी दोनों पे सेम इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है और अपोजिट हो गए ना, क्योंकि एक इनकम है और एक एक्सपेंस वाले साइड में, तो वो एक तरह से ऑफसेट कर देता है. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हम पूरा ट्रांजेक्शन ही हम दिखाएं नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? उसके ऊपर हमें कमेंट करना है. इन एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, द एंटिटी मे हैव क्लासिफाइड द फिक्स रेट असेट एज FVTOCI, यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विथ गेन्स and losses on the changes in fair value recognized in other comprehensive income and the fixed rate debentures at amortized cost. क्योंकि इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि फिक्स रेट असेट्स जो होते हैं उनको हम FVTOCI के थ्रू लेते हैं, यानी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू, और जो डिबेंचर्स हैं यानी कि लाइबिलिटी साइड के हैं उनको हम एमोटाइज्ड कॉस्ट, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे हम रखते हैं, वैल्यू करते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑप्शन नहीं है. So, reporting both the assets and liabilities at fair value through profit and loss, यानी कि FVTPL, corrects the measurement inconsistency and produce more relevant information. तो यानी कि यहाँ के फेयर वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या होगा कि हम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम अकाउंट करें तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. ये हमारा सजेशन हो गया उनके लिए. इलस्ट्रेशन नंबर 3. Entity ABC enters into a fixed priced contract to purchase 50 lakhs kilogram of copper in accordance with its expected usage requirement. The contract permits ABC to take physical delivery of copper at the end of 12 months or to pay or receive a net settlement in cash based on the change in fair value of the copper. Is the contract covered under the financial instrument standards? तो क्या हुआ है, एंटिटी ABC जो है उसने एक फिक्स्ड प्राइस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है 50 लाख किलोग्राम ऑफ कॉपर के लिए, ठीक है. या तो वो क्या कर सकता है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसका फिजिकल डिलीवरी ले ले एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स, या फिर वो कर सकता है कि नेट सेटलमेंट, जैसे भी प्राइस ऊपर या नीचे जिस हिसाब से होगा उसका वो नेट सेटलमेंट कैश में ले ले.
तो बताइए कि ये जो ट्रांजैक्शन है क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर होता है क्या? The above contract needs to be evaluated to determine whether it falls within the scope of financial instrument standards. तो पहले हमने देखना पड़ेगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्कोप में, उसके कवरेज में आता है क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं हम। द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बिकॉज देर इज नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट। उसने कोई ऑर्डर या एडवांस ऐसे कुछ पेमेंट नहीं किया है, कोई इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट की बात है ही नहीं। The contract is based on the price of copper and it is to be settled at the future date. सिर्फ प्राइस पर रिलेटेड है और वो भी फ्यूचर डेट पर सेटल होने वाला है। However, if ABC intends to settle the contract by taking delivery and has no history of similar contracts of settling net in cash or of taking delivery of copper and selling it within a short period after delivery for the purpose of generating profit from the short-term fluctuation in price or dealer's margin, the contract is not accounted for as a derivative under the Ind AS 109। यानी कि यहाँ पे क्या कहा है कि अगर या तो उनके पास हिस्ट्री नहीं है कि वो पहले भी उनकी ऐसी रही है कि वो खाली क्या करते हैं, डिलीवरी नहीं लेते हैं और नेट में खाली कैश में सेटल कर देते हैं, या फिर वो डिलीवरी लेते हैं और आगे जल्दी सेल कर देते हैं, यानी कि वो खुद कंज्यूम नहीं कर रहे, खाली सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो हम क्या होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट 109 के अंदर नहीं आएगा। इंस्टेड इट इज़ अकाउंटेड एज एन एक्स्ट्रा एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ इट बिकम्स ओनरस देन Ind AS 37 वुड अप्लाई। यानी कि ओनरस यानी कि अगर लॉस मेकिंग पहले से ही अगर हो जाए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ लॉस मेकिंग जो पता चलता है उसको ओनरस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो फिर वो Ind AS 37 में आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है, अगर उसको नेट में सेटल कर देता है या फिर ख़रीद के फटाफट बेच देता है तब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एंटिटी X होल्ड्स एन ऑप्शन टू परचेज इक्विटी शेयर्स इन लिस्टेड एंटिटी Y फॉर ₹100 पर शेयर एट द एंड ऑफ 120-day पीरियड। इवेल्युएट द कॉन्ट्रैक्ट वेदर अ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी। वेदर एंटिटी वेदर वॉट इफ एंटिटी एक्स हैज़ रिटर्न द ऑप्शन। ठीक है, तो उसने क्या किया है, एक ऑप्शन होल्ड कर रहा है वो कि क्या वो या तो वो परचेज कर सकता है इक्विटी शेयर्स ऑफ एंटिटी वाई जो कि लिस्टेड कंपनी है एट द रेट ऑफ 100 पर शेयर एट द एंड ऑफ 120 days। तो बताइए कि फाइनेंशियल एसेट हुआ कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी हुआ। और अगर उसने रिटर्न किया होता, अभी वो होल्ड कर रहा है ऑप्शन, अगर वो रिटर्न करता ऑप्शन तो क्या होता। तो ये अपने SFM की जो थियरी हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव चैप्टर, उससे भी बहुत आपको समझने में आसानी होगी। द अबो कॉल ऑप्शन गिव्स एंटिटी एक्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज cash of ₹100 for an equity share in another entity and will be exercised if the market value of the shares exceed ₹100 at the end of 120-day period. If the market value of the share will be such that the entity X will gain on the exercise date, it will exercise the call option। तो यहाँ पे सीधी बात है कि एंटिटी X है वो होल्ड कर रही है ऑप्शन, तो जो होल्ड करता है ना उसको कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिलता है। तो वो राइट जो मिलता है वो कब एक्सरसाइज करेगा, अगर जैसे उसको खरीदना है शेयर, अगर मार्केट में रेट 100 से ज़्यादा होगी तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, नहीं तो वो क्यों जाएगा मार्केट में। अगर 100 से कम होगी प्राइस तो वहाँ जाके वो कर लेगा, मार्केट से डायरेक्टली परचेस कर लेगा, उसको कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर उसके फेवरेबल में होगा तो ही वो एक्सरसाइज करेगा। सिंस एंटिटी एक्स टेंड टू गेन इफ द कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज, द एक्सचेंज इज पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी। अगर फेवरेबल है, अगर उसके फायदे में है तो ही वो करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। Therefore, the option is a derivative financial asset from the time it becomes a party to the option contract। तो वो स्टार्टिंग से, जब से उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं तब से वो एक डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट बन गया है उसके लिए। ऑन द अदर हैंड, इफ एंटिटी एक्स राइट्स एन ऑप्शन, राइट्स मतलब जैसे कि सेल कर रहा है वो, ठीक है, तो यानी कि वो अंडर ऑब्लिगेशन होगा। आंसर भी देख लेते हैं। अंडर विच द काउंटर पार्टी कैन फोर्स द एंटिटी टू सेल इक्विटी शेयर्स इन द लिस्टेड एंटिटी वाई for ₹100 at par at any time in the next 120 days, the entity X will be said to have a contractual obligation to exchange shares to another entity for cash of ₹100 on potentially unfavorable terms। ठीक है, तो अगर उसने राइट किया होता ऑप्शन तो क्या होता कि सामने वाली पार्टी है वो उसको फोर्स कर सकती है, एक ऑब्लिगेशन डाल सकती है कि नहीं भाई आपको तो ₹100 में सेल करना ही होगा,
और सामने वाली पार्टी कब मांगेगी 100 में, जब मार्केट में उसकी प्राइस डाउन हो गई होगी, तो वो उसके लिए पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस में ही रहेगा एंटिटी एक्स के लिए। If the holder exercises the option on account of the market price per share being above the exercise price of rupees 100 per share at the end of the 120-day period. Since entity X stands to lose if the option is exercised, the exchange is potentially unfavorable and the option is a derivative financial liability from the time it becomes a party to the contract. तो पहले केस में जब उसके पास होल्ड कर रहा था वो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, तो वो प्रॉफिट में था और पहले दिन से वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट था। लेकिन अगर वो ऑप्शन राइट करता है तो उसकी एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएगी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएगी और वो पोटेंशियली अनफेवरेबल टर्म्स पर ही एक्सरसाइज होगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, एंटिटी एक्स यानी कि द ट्रांसफरर होल्ड्स अ पोर्टफोलियो ऑफ रिसीवेबल्स विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 1 लाख. It enters into a factoring arrangement with entity Y, the transferee, under which it transfers the portfolio to entity Y in exchange of rupees 90,000 for 90,000. Entity Y will service the loans after their transfer and debtors will pay amount due directly to entity Y. Entity X has no obligation whatsoever to repay any sum received from the factor and has no rights to any additional sums regardless of the timing or the level of connection from the underlying debts. तो इस केस में क्या हुआ है, हमारा जो फैक्टरिंग है ना फाइनेंशियल सर्विसेज, वो एसएफएम का चैप्टर उससे ही रिलेशन में है कि एंटिटी एक्स ने क्या किया है, उसके रिसीवेबल्स उसने फैक्टरिंग कंपनी जो कि वाई है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है और ये एक नॉन रिकोर्स वाला है, यानी कि जो वाई है वो वापस से एक्स के पास नहीं आ सकता अगर कुछ भी केस इन केस अगर रिसीवेबल्स उसको नहीं मिल रहे हैं तो 1 लाख की वैल्यू थी रिसीवेबल्स की और उसने 90,000, यानी कि देखो सेटलमेंट तो करना ही पड़ता है, यहाँ पे एक्स को 10,000 का लॉस है ही प्राइमा फेस या, लेकिन ठीक है उसने इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है तो हमें इसको एवेल्युएट करना है. Entity X has transferred its rights to receive the cash flows from the asset Y an assignment to entity Y. Furthermore, as entity Y has no recourse to entity X either for late payment risk और फॉर क्रेडिट रिस्क, या तो लेट मिले या फिर मिले ही नहीं, इस बात का रिस्क वो एक्स पे ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता. सो एंटिटी एक्स हैज़ ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द पोर्टफोलियो. ठीक है, तो अब एक्स को कुछ लेना देना ही नहीं है उन रिसीवेबल्स यानी कि वो पोर्टफोलियो से, तो उसने सारे रिस्क और रिवॉर्ड सब कुछ उसने वाई को ट्रांसफ़र कर दिया है. हेंस एंटिटी एक्स डी रिकॉग्नाइजेज द एंटायर पोर्टफोलियो. तो अब उसको एक्स को अपनी बुक्स ऑफ में ये सब रखने की, ये पोर्टफोलियो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एंटायरली डी रिकॉग्नाइज कर सकता है. So the difference between the carrying value of 1 lakh and the cash received 90,000, that is 10,000, is recognized immediately as a finance cost in the profit and loss account. तो क्योंकि ये 10,000 ये एकदम से लॉस हो ही चुका है और इसका आगे कुछ लेना देना है ही नहीं, तो हमें सीधा सीधा हम राइट ऑफ कर देंगे, हम इमीडिएटली फाइनेंस कॉस्ट बोल के पीएनएल में डेबिट कर देंगे. Had entity X not transferred its rights to receive the cash flow from the asset, or there would have been any credit default guarantee given by entity X, then it would have not led to complete transfer of risk and rewards, and entity X could not recognize the portfolio due to the same. अगर entity X के पास अगर वाई आ सकती थी कि भाई क्रेडिट रिस्क है कुछ है तो उसके पास आ सकती है, तो वो कम्प्लीटली डी रिकॉग्नाइज नहीं करती. लेकिन इस केस में क्योंकि सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो उसको डी रिकॉग्नाइज करना ही होगा. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, एंटिटी जी places privately held ordinary shares that are classified as equity with a stock exchange and simultaneously raises new capital by issuing new ordinary shares on the stock exchange. The transaction costs are incurred in respect of both the transactions. Determine the treatment of the incurred transaction cost. तो एंटिटी जी है उसने एक प्राइवेटली हेल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि इक्विटी में क्लासीफाई हो रहे थे उनको भी किया है, स्टॉक एक्सचेंज पे डाला है और एक न्यू कैपिटल भी इशू किया है न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स का, और दोनों शेयर्स इशू करने की वजह से उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हुए. अब हमें दोनों ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट बताना है. सिंस द इशू ऑफ न्यू शेयर्स
is the issue of an equity instrument, but the placing of the existing equity instruments with the exchange is not. The transaction cost will need to be allocated between the two transaction cost, यानी कि आपको सेपरेट रखना होगा। जो आप न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं वो तो क्या होगा, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आ जाएंगे, लेकिन जो आपने एग्जिस्टिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सचेंज पे डाले हैं वो एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। तो इन दोनों केसेस में जो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई है वो आपको सेपरेटली एलोकेट करनी होगी। So the transaction cost in respect of new shares issued will be recognized in equity, whereas the transaction cost incurred in placing the existing shares with the stock exchange will be recognized in the P&L। यानी कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने न्यू शेयर्स इशू करते वक्त जो इनकर की है वो आप इक्विटी में डालेंगे, यानी कि उसको आप कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर्स को आपने स्टॉक एक्सचेंज पर डाला है वो आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकग्नाइज करना है, यानी कि वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7, एन एंटिटी इशूज नॉन रिडीमेबल कॉलेबल सबऑर्डिनेट बॉन्ड विथ फिक्स्ड 8% कूपन। The coupon can be deferred in perpetuity at the issuer's option. The issuer has a history of paying the coupon each year, and the current bond price is predicted on the holder's expectation that the coupon will continue to be paid each year. In addition, the stated policy of the issuer is that the coupon will be paid each year, which has been publicly communicated. Evaluate. तो यहाँ पे क्या है, नॉन रिडीमेबल कॉलेबल सबऑर्डिनेट बॉन्ड है जिनकी कूपन रेट है 8% फिक्स्ड। तो ऐसे तो उसमें लिखा है कि जो ये कूपन रेट है ना वो हम डेफर्ड कर सकते हैं परपेचुइटी के लिए, कि भाई हम देंगे ही नहीं कूपन, ऐसा भी हो सकता है इशूअर के ऑप्शन पे। लेकिन इशूअर जो आज तक काम किया है उसने क्या किया, हमेशा वो कूपन ईयरली बेसिस पे देता है, और जो करंट बॉन्ड की प्राइस है वो भी जो होल्डर्स हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई उसके अंदर जो वो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि उसमें हमको हर साल कूपन रेट मिलेगा, उस हिसाब से वो करंट प्राइस इवेल्यूएट कर पा रहे हैं। और जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है उसमें भी इशूअर ने कहा है कि हम हर साल कूपन पे करेंगे, और ये पब्लिकली कम्युनिकेटेड है। तो अब बताइए कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे इवेल्यूएट करना है। Although there is both pressure on the issuer to pay the coupon to maintain the bond price and a constructive obligation to pay the coupon, there is no contractual obligation to do so. Therefore, the bond is classified as a equity instrument. तो देखिए, एक तो उसके पास प्रेशर भी है, ठीक है, क्योंकि उसने हर जगह कह रखा है और वो हमेशा कूपन पे इंटरेस्ट पे भी कर रहा है हर साल, और उसको बॉन्ड की प्राइस वगैरह मेंटेन करनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी होता ही है। लेकिन क्योंकि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कि हाँ लोगों ने कहा वो सब बातें हैं, लेकिन इन ऑन पेपर ये सब बातें ऐसी है नहीं एक तरह से, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वो डेफर्ड किया जा सकता है टू द परपेचुइटी एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर। इस केस में हम उसको लाइबिलिटी नहीं मान सकते इस इंस्ट्रूमेंट को, और लाइबिलिटी नहीं मान सकते तो हम इसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही कंसिडर करेंगे। A zero coupon bond is an instrument where no interest is payable during the instrument's life, and that is normally issued at a deep discount to the value at which it will be redeemed. Evaluate. तो जैसे कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, उन पे कूपन पे मतलब उनके ऊपर कूपन कुछ नहीं होता, 0% ही होता है। वो सिर्फ क्या होता है कि एक बहुत ही लो प्राइस में आपको इशू करेंगे, जैसे कि समझ लिए कि उसका इशू प्राइस होगा से 90 और वो जो रिडीम होगा वो होगा 100 पे। तो ये जो बीच का जो 10% है ना, यही आपका प्रॉफिट है, उसकी इनकम है, ठीक है। तो अब ऐसे वाले में आप उसकी अकाउंटिंग उसको क्या बोलेंगे वो बताना है। ऑल्दो देयर आर नो मैंडेटरी periodic interest payment, the instrument provides for mandatory redemption by the issuer for a determinable amount at a fixed or determinable future date. Since there is a contractual obligation to deliver cash for a value at which the bond will be redeemed, the instrument is classified as financial liability. तो जैसा कि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हमें हर साल के हमें कूपन के पेमेंट तो नहीं करने, वो बात तो है, लेकिन क्या है, एक मैंडेटरी रिडेम्पशन है कि अगर आपने जीरो कूपन बॉन्ड 90 पे इशू किया है तो आपको 100 पे करना ही है, और कभी ना कभी एक डिटर्मिनेबल डेट होती है, कुछ 5 साल कुछ भी उसका जो ड्यूरेशन होगा वो फिक्स होगा या डिटरमाइन किया जा सकता है, वैसा होगा। तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो हो ही रहा है यहाँ पे, इसके लिए ये एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा, ना कि कुछ इक्विटी नहीं, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी आएगा।
Moving forward to question number 9. On 30th March 2015, an entity enters into an agreement to purchase a financial asset for rupees 1000, which is the fair value on that date. On the balance sheet date, that is 31st March 2017, the fair value is 1020, and on settlement date, that is 2nd April 2017, the fair value is 1030. So we have to pass the necessary journal entries on trade date and settlement date when the asset is required to be measured at amortized cost, FVTPL, FVT, OCI. तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल एसेट परचेज करने का हमारा एग्रीमेंट है। 31 मार्च 2015 को एंटर हुआ है और उस दिन उसकी फेयर वैल्यू थी 1000। जब बैलेंस शीट डेट आई तो उसकी 1020 प्राइस हो गई और फाइनली जब सेटलमेंट करते हैं 2 अप्रैल 2017 को, तब उसकी प्राइस फेयर वैल्यू बढ़ के हो गई 1030। हमें जनरल एंट्री पास करनी है और दो बेसिस हैं यहाँ पे, एक है ट्रेड डेट और एक है सेटलमेंट डेट, और उसके अंदर हमें 3 तरह से मेजरमेंट करना है, एमोटाइज कॉस्ट, FVTPL और FVT OCI, यानी कि 6 तरह से हमारे ये सम हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट एट एमोटाइज कॉस्ट, और वो भी ट्रेड डेट अकाउंटिंग वाला। अब जब ट्रेड डेट पे हो रहा है और एमोटाइज कॉस्ट है, यानी कि हमें कॉस्ट पे ही इनकर करना है, बाकी चीज़ों से हमारा लेना देना है ही नहीं। तो जब हम एंटर कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, यानी कि 30 मार्च 2017, उसमें हमारा क्या आएगा, फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू पेबल 1000, और हम बैलेंस शीट डेट को तो हमको चेंज करेंगे नहीं, तो उस दिन आ जाएगी हमारी, कुछ एंट्री होगी नहीं। दूसरा है सेटलमेंट डेट को हम क्या करेंगे, पेबल आ जाएगा, तो पेबल टू कैश, और वो भी सेम अमाउंट रहेगी 1000, ठीक है, क्योंकि एमोटाइज कॉस्ट था। नेक्स्ट केस आ रहा है हमारा, एमोटाइज कॉस्ट पर ही है लेकिन वो सेटलमेंट पे है। ओके, सो नेक्स्ट वाला हम कर रहे हैं एमोटाइज कॉस्ट पर ही है लेकिन वो सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग पे है। तो सेटलमेंट डेट है यानी कि यानी कि जब एग्रीमेंट एंटर हुआ है उस दिन कुछ एंट्री नहीं होगी, बैलेंस शीट डेट पर भी नहीं होगी, और डायरेक्टली सेटलमेंट डेट पर हम एंट्री करेंगे फाइनेंशियल एसेट टू कैश 1000। नेक्स्ट केस है FVTPL के थ्रू ट्रेड डेट पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PNL अकाउंट यूज़ करेंगे। तो 30 मार्च यानी कि जो एग्रीमेंट डेट है उस दिन एंट्री आएगी फाइनेंशियल एसेट टू पेबल्स 1000। फिर 31 मार्च यानी कि बैलेंस शीट डेट को हम फिर से अकाउंटिंग उसकी फेयर वैल्यू को कंसिडर करेंगे, और इसके लिए 1020 थी तो हम यहाँ पे 20 की एंट्री पास करेंगे फाइनेंशियल एसेट टू PNL। सेटलमेंट डेट को फिर से प्राइस हो जाती है 1030, तो 1000 और 1030 का डिफरेंस, सॉरी 1000 से तो पहले हमारा वो था 1020, तो उसका जो 20 डिफरेंस था वो हमने यहाँ कंसिडर किया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हम सेटलमेंट डेट पर लेंगे, ये 10 रुपीज़ का। तो ये फाइनेंशियल एसेट टू PNL जाएगा, और फाइनली हम जो पेमेंट करेंगे उसके लिए पेबल टू कैश 1000, अल्टीमेटली 1000 पे ही हमारी जो है वो रिकॉर्डिंग एसेट जो है वो उसी पे बुक हो रहा है, सॉरी एसेट तो बुक हो रहा है लेकिन हमारा पेमेंट जो है वो कैश में उसी दिन हो रहा है। फिर फाइनेंशियल एसेट FVTPL सेटलमेंट डेट पर करेंगे। तो सेटलमेंट डेट है यानी कि जिस दिन एग्रीमेंट एंटर हो रहा है उस दिन कोई एंट्री नहीं होगी। बैलेंस शीट डेट पर हम वही 1020 माइनस 1000 का जो डिफरेंस आता है 20 रुपीज़, उससे हम करेंगे फेयर वैल्यू चेंज। ये हमें याद रखना है, फेयर वैल्यू चेंज, क्योंकि अभी तक एसेट पिक्चर में आया ही नहीं है, इसके लिए फेयर वैल्यू चेंज टू PNL। सिमिलरली सेटलमेंट डेट को भी फिर से 1030 हो रहा है, तो उसका डिफरेंस 10 रुपीज़ का हम फेयर वैल्यू चेंज अगेन टू PNL में जाएगा, और फाइनली हम पेमेंट करेंगे तो एसेट रिकॉर्ड होगा 1030 पे ही, और कैश में पेमेंट जा रहा है 1000 रुपीज़ का, और फेयर वैल्यू चेंज हो गई हमारी 30 रुपीज़ की। नेक्स्ट आ रहा है अभी लास्ट वाला जो है FVT OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ट्रेड डेट अकाउंटिंग में। तो उसमें भी पहले फाइनेंशियल एसेट 30 मार्च को रिकॉर्ड होगा एट 1000, फिर फाइनेंशियल एसेट टू OCI जाएगा, वही जो डिफरेंस था वो 20 रुपीज़ का आ जाएगा, और अगेन सेटलमेंट डेट पर फाइनेंशियल एसेट टू OCI 10 रुपीज़ पे आ जाएगा, और फाइनली जो पेमेंट होगा वो कैश में होगा और वो 1000 रुपीज़ के लिए होगा। और ये फाइनली लास्ट पार्ट जो है हमारा वो है FVT OCI सेटलमेंट डेट। तो पहले दिन कोई एंट्री नहीं होगी एग्रीमेंट वाले दिन,
और बैलेंस शीट डेट पे हम फेयर वैल्यू चेंज को रिकॉर्ड करेंगे 20 माइनस 1000 टू OCI जाएगा, और फेयर वैल्यू चेंज सेटलमेंट डेट को भी 10 रुपीज़ जाएगा, और फाइनली जो पेमेंट होगा वो होगा फाइनेंशियल एसेट 1030 टू कैश 1000, फेयर वैल्यू चेंज 30। तो यानी कि आप देख लीजिए, जो फेयर वैल्यू थ्रू PNL है और फेयर वैल्यू थ्रू OCI है उनकी एंट्री सेम आती है, सिर्फ PNL की जगह हमारा यहाँ पे PNL आता है और यहाँ पे आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, a company invested in equity shares of another entity on 15th March for 20,000. The transaction cost is 400, not included in 20,000. Fair value on the balance sheet date, that is 31st March 2017, is 24,000. Pass the necessary journal entries when the financial asset is accounted as FVTPL. ओके, सो हम FVTPL के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट जो जिस दिन एग्रीमेंट एंटर हो रहा था 15 मार्च, उस दिन हम क्या एंट्री पास करेंगे कि इन्वेस्टमेंट आ गई है 20,000 की, उसके ऊपर हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा है 400, और अल्टीमेटली बैंक से पेमेंट गया है 2400 का। बैलेंस शीट डेट पर हमें क्या करेंगे, उसकी वैल्यू हो गई है 24,000 की, तो जो 4000 जो सरप्लस है ना 24 माइनस 20 वाला, वो हम फेयर वैल्यू गेन में क्रेडिट कर देंगे, और इस हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट जो होगी बढ़ जाएगी। फिर लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए हम जो भी करते हैं कि अक्रूवल बेसिस पे और बेसिस पे जो हम करते हैं कि हम जो लॉस होता है वो हम रिकग्नाइज़ करते हैं, लेकिन प्रॉफिट हम रिकग्नाइज़ नहीं करते। इसलिए हमने एक बार तो एंट्री पास कर दी है कि फेयर वैल्यू गेन हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, लेकिन हम उसको यहाँ पे रिवर्स भी कर देंगे। सेम 4000 PNL अकाउंट में चला जाएगा, और PNL में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है वो भी हम डेबिट कर देंगे 400 वाली। तो ये इस हिसाब से ये भी एंट्री हो गई है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11, a company invested in equity shares of another entity on 15th March for 50,000. The transaction cost is 1,000, not included in 50,000. Fair value on the balance sheet date, that is 31st March, is 60,000. Pass necessary general entries. Account is as FVT OCI. तो पहला वाला FVTPL के था और अब ये OCI है, तो सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे फेयर PNL की जगह OCI आ जाएगा। सेम एंट्रीज है, आप चेक कर लीजिए। पहले हम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे 51 पर, ठीक है, जैसे 50 यहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या है, हमने 50,000 का था, यहाँ पे हम एक साथ में ही कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट है PNL से, यहाँ पे 50,000 प्लस उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो हम इंक्लूड करके 51 का एसेट इन्वेस्टमेंट हम बुक कर रहे हैं। फिर 31 मार्च को फेयर वैल्यू चेंज जो होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 माइनस 51 करेंगे, ना कि 50, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड कर रखी है OCI में, तो उसका डिफरेंस आएगा। फिर 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट को हम फिर से फेयर वैल्यू गेन जो हुआ है, यही वाली एंट्री, उसको हम OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट में सेंड करने वाले हैं। और फिर ये जो OCI होगा ये कहाँ दिखेगा, तो ये अल्टीमेटली OCI का जो भी अकाउंट जो बैलेंस है था वो हम फाइनली फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट यानी कि वहाँ डालते हैं, तो ये वहाँ पे फिर से वो लाइबिलिटी साइड में ये अपना शो हो ही जाएगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस PNL रिजर्व अकाउंट में दिखता है, वैसे ये फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट में दिखेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12, a company lends 10 lakhs to another company at 12% per annum at interest of 12% interest per annum on 1/4/2017. It incurs 4,000 incremental cost for documentation. Loan tenure is 5 years with interest charged annually. The fair value of the loan is 9,94,000. Pass the necessary journal entries when the financial asset is accounted as amortized cost. Assume that the interest rate is based on the market rate of the interest. तो यहाँ पे amortized cost हमें फॉलो करना है, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है यानी कि 10 lakhs वो ही हमको मेंटेन करके चलनी है। तो 1 अप्रैल 2017 को जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है उसमें हम क्या लिखेंगे, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 lakhs।
फिर हमारा उसी दिन लोन प्रोसेसिंग एक्सपेंस भी हमने पे किया है जो कि है 4000, और फिर ये लोन प्रोसेसिंग एक्सपेंस क्योंकि बैंक से पेमेंट किया है उसको हम PNL में डेबिट कर, मतलब लोन अकाउंट से वो हम डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये 994 है, तो ये वाली जो अमाउंट है वो मतलब 10 lakhs में से ये माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, लोन अकाउंट क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम डेबिट करके, यानी कि लोन अमाउंट हम डिक्रीज कर रहे हैं बाय 4000। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13। On 1st April 2017, Alpha Limited issued 30 lakhs 6% convertible debentures of face value of rupees 100 per debenture at par. The debentures are redeemable at a premium of 10% on 31st March 2021, or these may be converted into ordinary shares at the option of the holder. The interest rate for equivalent debentures without conversion rights would have been 10%. Being compound financial instrument, you are required to separate equity and debt portion as on 1/4/2017. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, उसने 30 lakhs के कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं। तो नॉर्मली जो हमारी रेट होती है वो होती है 10%, अगर डिबेंचर्स की जो रेट होती है वो 10% होती है, लेकिन क्योंकि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो इनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है और पार पे इशू किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स में 2021 में कन्वर्ट हो सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। तो अब हमें इसमें इक्विटी और डेट पोर्शन जो है वो सेपरेट करके बताना है ऑन द डेट ऑफ इशू, यानी कि 1/4/2017। तो इसका अभी हम सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि कंप्यूटेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट कंपोनेंट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेट है ना, जो डिबेंचर, उसका हम प्रिंसिपल रीपेबल जो आफ्टर 4 ईयर्स है उसका हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारा SFM का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। हम क्या करेंगे, 30,000 और फिर 10% क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे, क्योंकि बाकी सारे शेयर्स हमारे 10% पर होते हैं ना इशू, ये वाला 10%, इसके लिए 6% नहीं, 6% तो उसका इंटरेस्ट हो गया, लेकिन हमें 10% यहाँ पे हमारा PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा। तो वो 10% के हिसाब से आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4th ईयर का आएगा 0.680, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 lakhs जो रिडीमेबल वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 22,44,000। उसी तरह से हम इंटरेस्ट का भी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो ये क्या है, 4 साल का है, तो हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव यानी कि एन्युटी फैक्टर निकाल सकते हैं 10% का फॉर 4 ईयर्स, विच कम्स टू 3.17। और इंटरेस्ट तो आप ये जो निकाल ही सकते हैं, ये तो है कि 30 lakhs का 6%, वो आ गया 180। तो 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 5,70,600। तो इन ऑल टोटल हम बोलें तो वैल्यू ऑफ डेट आ गई हमारी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स की बात है और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। तो उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट और ये इंटरेस्ट कंपोनेंट ऐड करके आता है 28,14,600। तो टोटल हमारा जो डिबेंचर्स इशू किए वो हमने किए 30 के। तो जो ये बैलेंसिंग जो फिगर आ गया 1,85,400, ये हमारा हो गया इक्विटी कंपोनेंट। इस हिसाब से हमने ये बाइफरकेट कर दिया है दोनों का। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द PM, illustration number 14. A company borrowed a sum of 85 lakhs for its expansion. The term loan were as follows: tenure of the loan will be 10 years, interest is payable at the rate of 12%, and the principal is repayable at the end of the 10th year. The company defaulted in the payment of interest for the year 4, 5 and 6. The loan reschedule agreement took place at the end of the 7th year. As per the agreement, the company is required to pay 150 lakhs at the end of the 8th year. You are required to calculate the additional amount to be paid on account of rescheduling and also the book value of loan at the end of 8th year when the reschedule took place, assuming that the interest will be compounded in case of default. तो देखिए, एक लोन लिया था 85 lakhs का, उसका टेन्योर था 10 ईयर्स का और इंटरेस्ट पेबल था एट द रेट ऑफ 12%, और जो भी प्रिंसिपल था ना वो डायरेक्टली एट द एंड ऑफ 10th ईयर, एट द एंड ऑफ टेन्योर यानी कि 10th ईयर पे हमें पे करना था। लेकिन अब जो ये कंपनी है उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, कितने साल का, 4, 5, 6 प्लस 7th का भी पेमेंट नहीं हुआ है, और फाइनली जो सेटलमेंट उनका हुआ है ना, रीशेड्यूल एग्रीमेंट हुआ है,
उसका उसने पेमेंट किया है एट द एंड ऑफ 8th ईयर, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट हुआ है वो किसके लिए हुआ है, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए, यानी कि इन ऑल 5 ईयर्स का डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो और ये इसने क्या किया, इंटरेस्ट जो होगा वो कंपाउंड होगा इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले एट द एंड ऑफ 8th ईयर। 8th ईयर कैसे आया आपको समझ में आ गया, क्योंकि 4th ईयर से लेके 8th ईयर तक कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है, फाइनली एट द एंड ऑफ 8th ईयर पेमेंट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 यानी कि 5 ईयर्स के लिए हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालेंगे, तो वो हमारी आ जाती है 1,49,79,904। ठीक है, हम क्या किए, लोन अमाउंट को 5 ईयर्स का कंपाउंड करके हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि रीशेड्यूलमेंट अमाउंट टू बी पेड हमारी क्या ये गिवन इन द क्वेश्चन है, वो है 150। ठीक है, अब हम इनका क्या करेंगे, तो 1,50,00,000 और हमारी जो अमाउंट आ रही है 1,49,00,000 समथिंग है। तो अब हम उसका एडिशनल पेमेंट दिखाएंगे कि हमारा पे करना तो इतना बनता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो वो जो एडिशनल अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं रीशेड्यूलमेंट की तरफ से, वो हम निकालेंगे। तो वो आ जाएगी 20,096 रुपीज़। सो एट द एंड ऑफ 8th ईयर बुक वैल्यू ऑफ द लोन विल बी 0, क्योंकि अब ये एट अ फ्रेश मतलब अब सब खत्म हो गया ना, हम ये वाला अमाउंट पे करके हम सेटलमेंट कर रहे हैं, नया सब बना रहे हैं, तो बुक वैल्यू लोन की हो जाएगी नील। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि इट इज़ अज्यूम्ड दैट द इंटरेस्ट ड्यू फॉर 7th and 8th हैव आल्सो नॉट बीन पेड, क्योंकि हाँ इसमें लिखा ही है ना कि उसने 8th ईयर के एंड में पेमेंट किया है। सो गाइस, हमने इस पीएम के क्वेश्चन जो थे, टोटल क्वेश्चंस थे 14, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम नई वीडियो में हम करेंगे मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो इससे डिफरेंट होंगे, जो इसमें कवर नहीं होंगे। तो इस तरह से आप एटलीस्ट अगर हम एग्ज़ाम में सोचें तो मिनिमम 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाला ही है, तो वो हम हमारे सिक्योर कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन।